جی سلمان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی خیریت؟ ہاں الحمدللہ بھائی سلمان. جی وہی 9 بجے لگاتے بولے لگا ہی نہیں مولا. 1-2 دن ہو گئے. نہیں دراصل ہے نا ایک دو دن سے وہ گھر کے کام چالو ہے نا، تو بارش کا بھی ماحول ہے. اچھا اچھا. مجھے آج بھی میں مس کرا تھا لیکن میں بولا میں کروں گا انشاءاللہ. جی 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 بھائی. جی بھائی وہی پوچھنا تھا بھائی. وہی مطلب ایک سوال پوچھنا تھا. انجینئر علی مرزا جو ہے جی وہ امام مسلم رحم اللہ علیہ کا مقدمہ بیان کرتا ہے جی کہ جس نے ضعیف حدیث بیان کی وہ جاہل ہے. سوری، جس نے ضعیف ضعیف جی ضعیف حدیث بیان کی وہ جاہل ہے. اور اچھا. انجینئر علی مرزا نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو، خاص کر بنو امیہ کو، ان کی شان میں گستاخی یا ان کی شان کو نیچا دکھانے کے لیے کئی ضعیف حدیثیں بیان کی. جی جب اس کو بتلایا گیا، جبکہ اس کا ایک عوام کو ایک دھوکہ دیتا ہے وہ کہ میرے کو میری غلطی بتاؤ، میں اعلانیہ رجوع کرے گا. جبکہ اس کے ہزاروں غلطیاں بتائے. یہ بھی بتائے کہ تم ضعیف حدیث بیان کر رہے ہو اور امام مسلم کا باپ ہے. تم نے خود بیان کیا مقدمہ کہ جو ضعیف حدیث بیان کرے وہ جاہل ہے. پھر تم امام نسائی رحم اللہ علیہ کا وفات کا جھوٹا واقعہ بیان کرتے ہو اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جھوٹ بولتے ہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتا بھی مر جائے تو اس کی ذمہ داری میری. جی ایسے کئی اپنی رعایا کے حکومت کے دور جی میں. ایسے جبکہ یہ بھی ضعیف موضوع من گڑت روایت ہے. جی جی ایسے کئی موضوع من گڑت روایت وہ بیان کرتا ہے، پھر بھی وہ اعلانیہ رجوع نہیں کرتا ہے. نہ آپ لوگ اس کے چاہنے والے ہیں، نہ آپ اس کو یہ بات بولتے ہو، جبکہ آپ بھی وہی چیز پہ اس پہ آپ بھی اڑے ہوئے ہو. نہیں نا بھائی تو یہ سلمان، پھر علمی کتابی کہاں سے ہوا بھائی؟ یہ تو ہر دھرمی وغیرہ ہو گیا. دیکھو علمی کتابی کا مطلب تو دیکھو قرآن سے آیات ہم ڈیٹیکٹ کرتے نا. ہمارا طریقہ ہے اہل سنت والجماعت کہ ہمارے بڑے بڑے امام قرآن کی آیات آقا کی کے نظریات سے لے رہے، جس کو جو مطلب جس پہ فٹ اس پہ گفٹ والی بات ہے. اب رہا سوال علی بھائی کا، تو سنو ہم کیا بولتے ہیں، قرآن حدیث کو اس طرح سمجھو جس طرح سے صحابہ نے، ہمارے اسلاف نے سمجھا ہے، جنہوں نے قرآن حدیث کو جمع کیا اور ہم تک پہنچایا ہے. ان کے فہم پہ لیکن ہمارے قرآن حدیث کو سلمان بھائی یہاں ایک منٹ دیکھو، ہمارے ہی ائمہ کرام اہل سنت والجماعت کا یہ اجماع ہے کہ ہم کتاب اللہ اور اس کے بعد پہلی بات تو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت مت بھولیے. کیوں؟ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے کہ کسی بھی صحابی کی غلطی بیان کرنا یا ان کو برا بھلا بولنا، یہ اگر جو بولے گا وہ خبیث انسان ہے. اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ علیہ کا صاف فتویٰ ہے ایسے انسان کے ساتھ آپ کھانا بھی مت کھاؤ. تو آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت مت بولیے. یہ تو یہ دیکھو یہ اپروچ ہے نا، نہ آپ مجھے دے سکتے ہیں نہ میں آپ کو. میں نے 2 حدیثیں بیان کی کہ انجینئر علی مرزا وہ ضعیف موضوع من گڑت حدیث بیان کر رہا ہے. صرف 2، ابھی تو بہت سارے میں بتا سکتا ہوں. لیکن سلمان بھائی میری بات یہاں آپ سے یہ ہے کہ علی بھائی اپنا ایک سوال پوچھ رہا ہوں. یہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انجینئر علی مرزا خاص کر بیان کرتا ہے، اور اس پر نہ ہی اس نے اب تک اعلانیہ رجوع کیا، نہ کچھ نہیں کیا نہیں. تو انجینئر علی مرزا کے اصول کے حساب سے ہی وہ جاہل ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ میرا ایک سوال ہے آپ کو. مطلب وہ میں ڈیسیجن لوں؟ ہاں تو آپ چاہنے والے ہیں نا. ہماری نظر میں تو وہ جاہل ہے کیونکہ اس نے خود یہ مقدمہ بیان کیا ہے. میں بریلیت میں بڑا ہوا پلا پھولا بھائی. میرا خاندان آج بھی بریلوی ہے. میرا خاندان آج بھی بریلوی ہے. میں ماحول میرے کو ہمیشہ دیوبند کا ملا، لیکن جب مجھے کتاب و سنت کا منہج ملا اور میں کتاب و سنت کو سمجھنے لگا تو میرے کو اتنی خوشی اپنی 26-28 سال کی عمر میں نہیں ملی کہ میں جس دن اہل حدیث کی مسجد میں گیا. حالانکہ میں پورا بھائی میرے کو آپ کی لائف اسٹوری سنو بھائی. میرے کو آپ کی لائف اسٹوری نہیں جاننا ہے. اگر میری لائف اسٹوری بتاؤں گا تو آپ پریشان ہونے کے. میرے کو خالی انجینئر علی مرزا کے تعلق سے آنا ہے. ہر کسی کی اپنی اپنی پرسنل لائف اسٹوری.
अच्छा, हाँ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी क्या था पता है ना, मुसलमान था हाँ, ना? उसको तो अहले सुन्नत वल जमात ने उसको तो बायकॉट करके नहीं, इस्लाम से खारिज किया। स्टार्टिंग में क्या था, वो अहले सुन्नत वल जमात था ना, बाद में वो काफिर हुआ, वो अलग मसला है। लेकिन तो ऐसी बहुत सारे लोगों की बहुत सी स्टोरी है, या पर्सनल स्टोरी पर मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इंजीनियर अली मिर्जा के जो उसूल है, जो अइम्मा अहले सुन्नत वल जमात के असलाफ पे जो झूठ बांध कर या उनका सहारा लेकर जो अपनी दुकान चमका रहा है, और खासकर इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह अलैह का मुकदमा, इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह अलैह का मुकदमा अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोगों को बोलता है लेकिन खुद उस पे अमल नहीं करता है। तो लेकिन ये वो अपना जेलम में वीकली सेशन चलाता है, सोशल मीडिया से नहीं, लोगों ये को तो हदीस छूटता है। सही है या नहीं है? आई डोंट नो, बट मैंने फिर जो आप चीज तहकीक को नहीं मैं करते जब हो? तक कौन आप तहकीक नहीं करते हो? आप मुझे उस हदीस का नंबर दीजिए, मैं क्या मैं दूं उस भाई? हदीस को जाके आप तो अपने क्या बोलेंगे उस्ताद और क्या बोलेंगे मुर्शद, उससे पूछिए ना, वो ये हदीसें बयान करता है। इमाम मुस्लिम रहमुल्लाह हम अलैह, कहाँ इमाम निसाई रहमुल्लाह अलैह का झूठा वफात का वाकया बताता है, और इमाम इनके ऊपर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे झूठ बांधता है। तो आप उसको पूछिए ना कि ये हवाला मुझे दे भाई, ये तू हदीस जो बयान कर रहा है या वाक्य जो बयान कर रहा है, मेरे को उसका हवाला दे ना। लेकिन मैं सलमान क्यों भाई, बोलूं? आपको जो चीज जहाँ आपने जो स्टडी किया, आपको जो उसका जी। मफहूम अपने हिसाब से लग रहा अपने है कि हिसाब से यार कह ये ले रहा हूँ सही भाई, पे, मैं तो आपसे दलील मांग रहा हूँ कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो वो बात बोला है कि मेरी जी। रियाया में अगर कुत्ता भी मर जाए तो मेरे को उसका जिम्मा है। तो ये मेरे को रिवायत तो चाहिए भाई, ये मेरे को सही सनद से रिवायत चाहिए मुझे। क्या है, अली भाई बोल रहा है ना, आप उसके व्हाट्सएप नंबर मांगता है तो मैं दे देता हूँ। आप उसको फॉलो फिर किस हिसाब से कर रहे हो? आप उसकी बातों की तहकीक नहीं करते हो, असल किताबों की तरफ रुजू नहीं करते हो आप। लेकिन मेरा ऐसा कौन सा आपने मतलब वो देख लिया भाई कि मैंने आप तो फेसबुक पे इंजीनियर अली मिर्जा का भरपूर दिफा करते हो। जो भी उसके रद्द में कोई पोस्ट डालता है तो फौरन उस पे आके आप कुछ भी पोस्ट करते हो, नंबर शेयर करते हो, और जब बात कर रहे हैं आपसे सवाल इल्मी सवाल हो रहा है तो किस हिसाब से आप इल्मी किताबी है भाई? अरे मेरे भाई, मैं आपको मेरे से इख्तलाफ है, मेरी कोई बात है तो मैं नहीं, उसका, मुझे तो इंजीनियर अली मिर्जा और उसके तमाम चाहने वालों से इख्तलाफ है, और मैं तो एक एक को हाँ तो ये फोन आपकी कर चॉइस करके, है, आपके तो नहीं मैं तो एक एक को फोन कर करके ना उनका इल्मी लेवल चेक कर रहा हूँ कि वाकई में इल्मी किताबी है या अंधी तकलीद है। नहीं ना, आंधी तकलीफ तो उसी ने सिखा दिया, किसी की भी नहीं करनी। फिर आप कर रहे हैं ना भाई। उमर बिन कौन सी खत्ताब बात है? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाकया आपको लेकिन पता मेरा है? वाकया तो मैंने अपने बचपन से सुनते आ रहा हूँ, हर जगह अहले सुन्नत वल जमात नहीं, लोग जो मैं है। तो नहीं सुना भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले हदीस होके 12 साल हो गए, लेकिन आज तक मैंने ये हाँ, वाकया नहीं सुना। हम लोग तो ये मतलब क्या है ना कि हंसियत वालों के अब वो माहौल में रहते, बात तो वो उन नहीं लोग है। इस हनफियत में तो मैं तो बहुत सारी बातें सुना हूँ कि सफेद कबूतर पालेंगे तो जन्नत में जाएंगे। मैं तो ऐसे बहुत सारी बातें सुना हूँ, लेकिन मैंने वो सब बातों को तलाक दे दिया, और अहले हाँ हदीस होने के तो बाद सिर्फ कुरान हदीस और सलफ का फहम पकड़ लिया बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं पकड़ा। आपकी इस बात को मुझे मतलब समझना है, जी तमाम साहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु बेशक लाजिम और ताजिम के एतबार है, जी बराबर, रजी अल्लाह ताला अन्हु। मुझे आप सूरह तौबा आयत नंबर 100, 101, 102 के जो 3 आयतें हैं तौबा में, उसका जरा मुझे तर्जुमा आप सुना दीजिए। जी मैं इंशाल्लाह सुनाता हूँ, लेकिन आप मानते हो ना कि इंजीनियर अली मिर्जा ने ज़ईफ मौजू मनगढ़ंत रिवायत बयान की है? लेकिन वो कौन से लेक्चर में उसने किया है? भाई वो आप ढूंढ लो ना, आप तो उसकी वीडियो तमाम यार ढूंढते हो। ऐसे 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 ठीक है कैसे चलिए, यार मैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह मेंशन करता हूँ। यानी हाँ आपको पता है या नहीं है, इतना बोल दो कि इंजीनियर अली मिर्जा ने ये तो इमाम निसाई रहमुल्लाह अलैह का जो वफात का वाकया बयान किया कि बनु उमैया के इमाम लोगों ने, इमाम नसाई इमाम निसाई इमाम निसाई, जी जी। इमाम निसाई रहमुल्लाह अलैह के ताल्लुक से इंजीनियर अली मिर्जा झूठ बोलता है, जबकि वो जी स्टार्टिंग में इसी रिवायत के ऊपर वो दुकान अपनी बहुत चमकाया कि इमाम निसाई रहमुल्लाह अलैह मुल्क शाम गए, फिर वहाँ पे उन्होंने अहले हाँ बैत की हाँ, फजीलत बयान वो की। सुना हूँ जी, हाँ, हाँ वो तो ज़ईफ मौजू मनगढ़ंत रिवायत है, वो मुरसल रिवायत है। हाँ। तो वो रिवायत आप जो है ना, हाँ वो जो जईफ है उसको हाँ, मुझे आप सेंड कीजिए, मैं अभी अभी देखूंगा। अभी अभी और भेजू?
जुबैर अली ज़ई, जुबैर अली इंजीनियर अली मिर्जा जुबैर अली ज़ई को अपना उस्ताद मानता है। और जुबैर अली ज़ई हाँ, की किताब में, मकालात में उन्होंने इस रिवायत पर बहस करते हुए साबित किया है कि ये रिवायत मुरसल है। लेकिन वो वक्त के इमाम है, हाँ? जुबैर अली जहीर है, और भी बहुत सारे अइमा है, कोई उनको जही बोलता होगा तो दूसरा कोई सही बोलता होगा, क्या सबके अच्छा, नजदीक वो जही है? यानी आप ये चीज को मानते हो कि उनकी तहकीक हमारे लिए हुज्जत नहीं है, जुबैर अली ज़ई की? कौन? आप मानते हो? जुबैर अली आपके जही की? आपके नजदीक और इंजीनियर अली मिर्जा के नजदीक जुबैर अली अली को ज़ई, छोड़ो। जुबैर अली को क्यों छोड़ो? नहीं। उसको ही पकड़ना है ना, मिर्जा को ही पकड़ना है मुझे। हाँ चलो उसको ही ठीक पकड़ना है, है भाई, उसको ही तो पकड़ना है। उसके जो वो बयान करा। धोखेबाजियां है, मक्कारियां है, वही तो लोगों के हाँ, सामने लाना है। और आप जैसे चाहने वालों को तो उसको बताना है, हम और आपके ऊपर पूरी हुज्जत कायम करना है, ताकि कयामत के दिन हम अल्लाह से बरी हो सके कि अल्लाह हमने इसके ऊपर पूरी हुज्जत कायम की, फिर भी अपनी हरदर्मी पे अड़ा रहा साहबा के इसकी असलाफ के पहचान नाम ना, पे। एक मिनट सलमान, मेरी एक बात सुनो। जी बोले इसकी ना। पहचान में औरंगाबाद 40 गांव से रनिंग में था हैदराबाद के लिए, और वही सोलापुर वाला, उमरगांव वाला रूट पे मेरी उसकी पहचान हुई, तो मैं उसको 3 दिन तक गालियां देते रहता था, बोले यार ये क्या बंदा है, कहाँ से सुना रहा है। ये 2014 का वक्त था, और उसके हाँ बाद उससे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन मेरे नजदीक हाँ। अली भाई कोई ये चीज नहीं है कि अली ने बोल दिया तो हो गया। तो भाई आप जहाँ भी फेसबुक पे गलती, उसका, फिर फेसबुक पे उसका दिफा करना बंद करो ना भाई आप। नहीं ना, मैं उससे सुनता हूँ नहीं, किताब मैं नहीं सुन्नत की सुनता। कुछ चीज। फिर कोई भी जब भी कोई बंदा उसके ऊपर कोई भी पोस्ट करता है या उसके रद में कोई इल्मी गुफ्तगू करता है, तो आप तो फौरन जोश में आ जाते हो कि मेरे नहीं ना, नंबर, और यहाँ तक के नंबर जोश तक सेंड कर देते हो, बात करो मेरे को इस क्या पे कर कॉल। क्या कर दो? नंबर मोबाइल नंबर सेंड कर देते हो, और अबू सुफियान माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर बुरे बुरे अल्फाज से उनको नवाजते हो आप। नहीं ना, इनका जो एक दूसरों का मतभेद था, वो मतभेद बुखारी मुस्लिम से जो रेफरेंस होते हैं, अच्छा उस रेफरेंस का नीचे नंबर देके उनके मतभेद तो है ही ना, वो तो अच्छा। वाजही ही है। भाई मतभेद तो अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी हुआ था, वो क्यों नहीं बयान किसका? करते? अब्बास किसका? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो बुखारी और हाँ, मुस्लिम में हजरत अबू रिवायत बकर मौजूद और है। हजरत अली का भी हुआ था। वही ना, तो वो क्यों नहीं बयान करते? वो तो मेरी वो अक्सर बयान मैं करके अपने क्यों नहीं लोग, बोलते हो कि नौजुबिल्ला सुम्मा नौजुबिल्ला, अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को झूठा कहा, कज्जाब कहा, धोखेबाज कहा, नौजुबिल्ला, क्यों नहीं कहते हो? लेकिन वो हजरत अब्बास की मेरे पास कोई रिवायत नहीं है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन यानी हजरत अरे अबू, भाई, लेकिन इससे पता चलता है कि आपने जो है ना, सिर्फ अपने मतलब का दिन लिया है, नहीं नहीं नहीं, अपने ऐसा कुछ अपने मतलब से, वो भी। नहीं। मैं बड़ा अच्छा लगता है, जूनागढ़ जाता हूँ, अहले हदीसों के साथ नमाज पढ़ता हूँ। इतनी सारी मस्जिदें होती है, भाई लेकिन स्पेशल रिश्ता अहले बना के अहले लाए। हदीस के मसाजिद में कोई भी आंदे, शिया भी आंदे, कोई भी आंदे, उसको मना नहीं है नमाज पढ़ने को। जी जी। हाँ, अहले हदीस के मसाजिद ऐसे हैं। हाँ, तो हमें भी अहले हदीस से मोहब्बत है, लेकिन हजरत मत करो भाई, हजरत माविया रजी जब तक आपके दिल में एक अदना से सहाबी के लिए भी बुग़्ज़ है, आप अहले हदीस से मोहब्बत नहीं कर सकते। हाँ भाई, ऐसा नहीं है भाई। मैं आप, खासकर मैं नीम राजी और राजियों के लिए बड़ा ही सख्त मिजाज हूँ, बड़ा ही वही तो, सख्त मिजाज। नाज़ी और राफ़ज़ी और खारजी, इन्हीं लोगों के लिए ही तो मटिया मेल हो गया ना। फिर इन लोगों को बोलो ना कि भाई मेंबर रसूल से जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान, इन सारी बातों से हमारे मुआशरे को, हमारे अवाम को एजुकेटेड करे, ताकि हमारे लोग जो फिर गए, एक दूसरे को दुश्मनी नजर से देख रहे अच्छा और अपने अपने फिरके बना। जी, सुनो, जंगे जमल, जंगे सिफीन, जंगे नहरवान, ये हमारे जो असलाफ ने है ना, इसलिए बयान नहीं की है, इसलिए अपनी किताबों में नहीं लाया है, और हमारे उलमा मेंबर रसूल पे इसलिए ये चीजों को, इन जंगों को बयान इसलिए नहीं करते हैं ताकि सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अजमईन पे जो है ना तबर्रा कर सके या उनकी शान में गुस्ताखी कर सके। उनका बताने, ये रिवायत का शामिल करने का मकसद वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान में अंबिया अलैहिस्सलाम का वाक़यात को बयान करना है, ताकि लोग इससे इबरत ले और लोग जो है ऐसे इससे बचे हुए हैं।
तो सलमान, आप तो इस बात से आपको जरा गम नहीं है कि इन लोगों ने हनफियत के नाम से दुकान चला दी, कौन साफियत के नाम से दुकान चला दी, कौन मालकियत के नाम से, कौन? ये जो 4 इमामों में बढ़ गए तो लोग, यहाँ पे 4 और इमामों का मसला ही नहीं है ना भाई। उसके नीचे आके फिर देवबंदी हो तुम्हारी गए, सुनो बरेली सुनो हो गए, अहले हदीस हो गए, सुनो, क्या नाम शिया हो आपका? गए। हाँ, रफीक भाई, जी रफीक भाई, बेलीम, रफीक खान बेलीम भाई। जी भाई। तुम्हारा और मेरा जो मसला है ये इमामों का मसला है। मैंने इसलिए कॉल किया हूँ, ये हनफी, शाफी, मालकी, हमली, इसके नहीं, इस ताल्लुक से बात मैंने से कॉल हमें किया हूँ। जो वो छोड़ हम बात दीजिए, कर रहे, अपना जो जी, इख्तिलाफ है नहीं, दोनों का, तुम्हारा तुम्हारा और मेरा तो मेरा क्या इख्तिलाफ है इख्तलाफ है, वो मेरे सहाबा से को आपको जो लेकर। आप एक रिवायत बयान करते हैं अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये करने के लिए, उनकी शान में गुस्ताखी करने के लिए। अहले सुन्नत वल जमात की मुतबर किताबों में हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किरदार को डैमेज पाया जा रहा है, और चलो वो एक जैसा कि डैमेज हमारे बता दो, अइमा है, एक डैमेज बता दो, एक डैमेज बता हजरत, दो। अरे इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी ने जो रिवायतें लाए, बुखारी बयान करो मुस्लिम में ना, क्या, बयान करो, बयान मैं करो वो आपको रिवायत। मैं अभी आपको अभी भेज देता बयान हूँ। करो। आप ऐसे आप नहीं जो होता है, हदीसें, आपको आप कॉल जो रिकॉर्डिंग हदीसें, करना सुनो ना है। भाई, आप जो हदीसें बयान करेंगे ना, मैं 100% गारंटी से कहूंगा कि आप जो है फैम मिर्जा, इंजीनियर अली मिर्जा के फैम से ही बयान करेंगे। आप जो भी हदीस नहीं, बयान करेंगे तो असलाफ के अबू फैम जर से नहीं करेंगे। गिफारी, सुनो ना, हजरत मैं अम्मार इब्ने यासिर, बोलिए, अम्मार भी इब्ने हजरत अबू, यासिर का, हाँ, अम्मार हजरत रज़ियल्लाहु अबू का क्या है? अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या है इन ये तो सब के बोलो जो, ना, क्या है ये तो मैं तो आपको डाल रहा हूँ ना, आपको मैं डाल रहा हूँ बुखारी मुस्लिम से, भाई। मैं आप आप उसको मुझे व्हाट्सएप पे रिटर्न में देना, सुनो ना, सुनो, मैं इसका रफीक खान, मफहूम बयान नहीं करके नहीं, दो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मफहूम तो बयान कीजिए। वो रिवायत आप डालना, मैं इंशाल्लाह वो दूंगा जवाब है। उससे पहले मैं यही पे देता हूँ, आप खाली मफहूम बयान कीजिए इंशाल्लाह। अबू जर गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाम से मदीना क्यों भेजे गए थे? फिर बोलो। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हम्म, उनके खिलाफत के दौर में उनको मदीना से वांटेड तय पार, सरहद के पार किसने भेजा, क्यों भेजा? किसको? हजरत अम्मार इब्ने यासिर को किसने कत्ल करवाया, किसने क्यों कत्ल हुए, किसने कहाँ कत्ल कत्ल कराया? हुए? किसने? अच्छा, ये अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल से और इससे अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार गलत कैसे साबित होता है भाई? सर, तो हजरत उमर के दौर से अबू उबैदा इब्ने जरा के वक्त में जो जगह इस्लाम ने अल्लाह के इज़्ज़त से पाई, उसको फतेह करी, उनके बाद और 2 वहाँ के गवर्नर बनाए जा रहे, फिर हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहाँ के गवर्नर बना दिए जा रहे, और हजरत उमर का दुनिया से रुखसत हो जाना, फिर हजरत उस्मान के जमाने में पूरे शाम को उनके अंडर में रखना, और हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रखना मत बोलो भाई, यही तो अल्फाज तबाइयों के थे। जैसा इनके ऊपर एक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो एक गवर्नर थे, जो कूफा के गवर्नर थे, उनके ऊपर शराब नोशी का गलत, वो भी बुखारी मुस्लिम में, चलो अली को छोड़ो, बुखारी, अरे भाई सुनो, बुखारी मुस्लिम में आप बोल रहे हैं ना, वो बुखारी मुस्लिम से साबित कीजिए कि शराब नोशी वलीद बिन उकबा ने की है। तो 40 कोड़े कौन मार रहा है फिर? अरे भाई, आप पूरा उसका तफसीर, आप उसका पूरा तहकीकी जायजा लिए, क्या है वो? मैं जोधपुर से बुखारी मुस्लिम घर में मंगाया हूँ, आपके दोस्त, सुनो ना भाई, वो हदीस में बोलता हूँ वलीद बिन उकबा की। उससे पहले वो हदीस में बात करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ। आपने मुल्क शाम में अमीर माविया को उधर ही रखा गया, ये तो भाई उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नत थी ना, कि अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुल्क शाम का गवर्नर बनाना। तो इसमें उस्मान रज़ियल्लाहु ताला, सर, हजरत उमर अपने हर गवर्नर को 3-4 साल में बदला कर देते थे। चलिए साबित कीजिए, 3-4 साल में हम बदली किए करे थे, साबित कीजिए, साबित कीजिए ना। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा आप किसी और दूसरे सहाबी का नाम नहीं ले सकते आप। लेकिन खालिद को तो वहाँ वो सिपह सालार थे, और उनको उनकी सिपह सालारी से हटा के वहाँ एक दूसरा सिपह सालार भेजा गया। आप वही बोल रहा हूँ ना, बताया एक रब्बे खालिद की तरफ से हमारे पे जो कुछ अल्लाह की रहमत है। सुनो ना भाई, मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3-4 साल से ज्यादा किसी को गवर्नर नहीं बनाया। वो अक्सर उनको लगते थे, सुनो ना, दूसरे लोगों को लगा। भाई आप पहले सवाल पूरा सुनते जाओ।
जी भाई। आप अपनी कहानी या मिर्जा की कहानी आप बयान मत करो। अब मिर्जा का पूछ लेके आप मेरे पे मुझे जोड़ रहे हो यार। सुनो ना भाई, खाली खाली उसका उमर काम कर रज़ियल्लाहु रहे हैं हम। ताला अन्हु इल्मी किताबी हो ना, तो इल्मी किताबी सवाल कर रहा हूँ, उसका हाँ, जवाब भी इल्मी मैं तो किताबी ही देना, अंधी तकलीफी मत देना, समझे ना। अंधी अंधी तकलीफी कौन दे रहा है, मैं दे सुनो रहा हूँ भाई, आपको मैं टेस्ट। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से साबित कीजिए कि उन्होंने 3-4 साल तक ही गवर्नरों को रखा है अपने ओहदों पर। एक एक मेरे को रिवायत बयान करके साबित कीजिए। जी मैं देखूंगा इंशाल्लाह, स्टडी करके ये दूंगा। करो स्टडी करो, देखते अल्फाज साफ रहने चाहिए कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3-4 साल में गवर्नरी चेंज किया करते थे। अगर आप साबित करेंगे फिर आगे की बात इंशाल्लाह होगी। फिर अगर आप ये साबित वलीद नहीं करेंगे, सुनो, खालिद बिन वलीद के बाद चलेगी, तो हाँ? फिर खालिद बिन वलीद के बाद किसको लगाया गया, फिर वो कैसे खालिद काम से बिन हटे वलीद गए? रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले ये बताइए, अवाम को धोखा मत दीजिए, पहले आप ये बताइए कि उनको किस वजह से सिपह सालारी से हटाया गया था। लोगों के तो अकीदे मैंने खराब बताया हो ना। रहे थे, वो वजह से। हाँ, यस आई डू इट, गुड, बराबर। हाँ, ये वजह से निकाला गया था, और ना कि गवर्नर हाँ, 3-4 साल तक ही रहेंगे इसलिए हटाया गया, ये वजह नहीं थी। नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना, लेकिन मैं लेकिन यहाँ आपका से तो दावा शेड्यूल अमीर लाऊंगा। माविया पे वही है ना कि नहीं उमर करना, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हमें 3-4 मुझे साल ही ये रखे। जानना है, मुझे ये जानना है कि हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शाम की गवर्नरी कैसे मिली, कब मिली? अरे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दिया उनको, वो खुद जाकर नहीं लिए। नहीं सर, आप अच्छा, उबैदा फिर कैसे इब्न मिली, जरा को, कैसे मिली? अब उबैदा इब्न जरा से हाँ, स्टार्टअप कीजिए शाम की हिस्ट्री। कहानी मत सुनाइए, हदीस बयान की, रिवायत बयान नहीं, कीजिए। हदीस आपकी हदीस नहीं ना, कहानी मत सुनाइए कि देखो अरे नहीं, ये ऐसा हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब कूफा गए, कूफा के लिए हिजरत की, मक्का से मदीना हिजरत की, तो खुरूज के लिए की, बगावत के लिए की, जालिम हुक्मरान के खिलाफ जाने के आपने लिए फोन मुझे की। इसलिए ये किया है कहानी कि मत अमीर बनाइए शाम को अपनी तरफ बचाना से है। अल्फाज डालकर। नहीं ना ये भाई, कहानी बनाना आप बता दीजिए। शिया राफजी पता है क्या, वाकदी, अबू मिकनाफ, ये जो रावी लोग है ना शिया राफजी, ये इन लोगों का तरीका है कि कहानी बनाकर वो सहाबा पर डाल देते थे। पहले सुन्नत का तरीका हमारा नहीं है ये। हम लोग बगियम बहनों आपसी जिद में तितर फिकर हो रहे हैं, हम लोगों को हमारे नबी भाई का आप सहाबा अंडरस्टैंडिंग जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हमारे जो अव्वलीन ईमान का हिस्सा है, उनके ऊपर आप तबर्रा करेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे भाई। सर आप मुझे सूरह तौबा 100, अब 101, बताओ 102 भाई, ठीक है चलिए वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। पहले तर्जुमा दे अमीर दीजिए। अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे आपने जो गवर्नरी का जो काबिज होने का जो आपने झूठा इल्जाम लगाया है ना, उसको आप पहले साबित कीजिए कि वो सर गवर्नरी झूठा पे नहीं, काबिज मैं हो गए। आपसे ये चाहता हूँ, आप मुझे बता दीजिए कि अमीर शाम को कब कैसे गवर्नरी मिली? अरे अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गवर्नरी उसी तरह मिली जिस तरह से उमर बिन खत्ताब ने दूसरे गवर्नरों को कूफा में, बसरा में, इधर उधर जैसा गवर्नरी दी थी, उसी तरह अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी। हजरत अजीज बिन सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत माविया के भाई नहीं थे? कौन कौन? हजरत यजीद हाँ थे बिन ना, सुफियान थे तो शाम के गवर्नर हुआ करते थे, वो हाँ तो हुआ करते थे ना। हाँ तो लेकिन भाई वो गवर्नर थे, लेकिन बाद में जब पता चला अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे बेहतर है तो उनको गवर्नर बनाया गया। खैर उनको इस दुनिया से रुखसत होने के बाद हजरत माविया को लगाया जा हाँ रहा है तो वही रज़ियल्लाहु ना ताला। भाई, हाँ, तो उसमें मैं गलत यही क्या है? आपसे, गलत क्या है उसमें? गलत क्या है तो वो इबारतें आप पढ़ लीजिए क्या और वो पढ़ते पढ़ते आइए। क्या? और हजरत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुनिया से जाने के बाद हजरत उस्मान को मुसलमानों का खलीफा बनाने के बाद जो कुछ हालात बिगड़े, फिर बिगड़े खिताब किसने उस्मान के बिगाड़े लिए, हालात किसने बिगाड़े आपको पता है? बताइए ना भी, पता है या नहीं है? वही तो आप बताओ ना। चलिए, मैं वलीद बिन उकबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ही मिसाल देकर इशारतन आपको बता देता हूँ कि हालात कैसा और किस तरीके से बिगाड़े वो तो गए। यार कूफा एक अलग जगह थी, वो कूफा का नहीं भाई, अलग सुनिए मैं गवर्नर था। आपको इंशाल्लाह मैं इसके शाम के दलाइल भी गवर्नर देता की हूँ। बात कर रहा हूँ। सुनो मैं इसके इंशाल्लाह इसके दलाइल भी मैं आपको दूंगा। मैं ये हवा में बातें नहीं करता हूँ, ना ही कहानियां बनाता हूँ, और जो रिवायतों में सही सनदों के साथ मौजूद है मैं वही बयान करता हूँ, तो और हमारे वलीद बिन अखलाक के उकबा फहम पे।
वलीद बिन उकबा के कोड़े नहीं खिलाफ। लगे। अच्छा, वलीद बिन उकबा कहाँ के गवर्नर थे? वलीद बिन उकबा को कुफे का गवर्नर और वहाँ से माजूर करके सुनो ना, सुनो सुनो, शराब मैं की- आप पूरी ये मत करो, मैं जितना सवाल कर रहा हूँ उतना बताइए आप। वलीद बिन उकबा कहाँ के गवर्नर थे? कुफा। कूफा। उनको 40 करोड़ की सजा किधर हुई? वो माजूर करने के बाद लाए गए किधर थे किधर किधर हुई? हजरत उस्मान की अदालत में। अदालत किधर थी? वो कौन से शहर में थी? आ गए ना निट्टी गिट्टी पे। हाँ, बताओ, ये आप बताओ चलो। किधर? मदीना में थी ना हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की गवर्नरी। सेंट्रल मदीना था ना। हाँ। हाँ, तो उधर लाया गया ना उनको। हम्म। हाँ, चलिए, ये चीज माने आप कि कूफा के गवर्नर थे वलीद बिन उकबा, और उनको सजा देने के लिए बुलाया गया मदीना में। अच्छा, वो दो जो शख्स गवाह बने थे कि एक ने गवाही दी कि ये नमाज को लंबी करना चाहते थे, बरोबर? हदीस के अल्फाज यही है ना। तो ये मतलब आपको वलीद बिन उकबा की भी जो नेगेटिव थिंकिंग है उससे भी आप मतलब अरे मैं बताता हूँ पॉजिटिव भाई, बनाना सुनो ना, चाह रहे हो। मैं आपको पूरा तफसीली बता रहा हूँ, मैं दलाइल की रोशनी बताओ। में। सुनिए, वलीद बताइए, बिन, हदीस नंबर दीजिए पहले। हाँ मैं इंशाल्लाह देता हूँ, सुनिए। वलीद बिन उकबा रज़ियल्लाहु ताला, मुस्लिम की हदीस बयान कर रहा हूँ मैं। वो जो मुस्लिम की हदीस के ऊपर आपके उस्ताद इंजीनियर अली मिर्जा जो लोगों को धोखा दे रहे हैं कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गवर्नर शराब नोशी किया करते थे। गवर्नर कुफा का। कूफा का नहीं, गवर्नर। वो आप मिर्जा के अल्फाज सुनिए फिर से। इसीलिए वो उनके खिलाफ बगावत हुई, उनको कत्ल किया गया, ताकि क्योंकि उनके गवर्नर जो है वो शराब नोशी ऐसे वैसे काम किया करते थे। ये मिर्जा के अल्फाज है। आप कभी फुर्सत से ठंडे दिमाग से सुनते जाइए उसके अल्फाज, और एक एक अल्फाज पर गौर भी करते जाइए, ठीक है? अब मुस्लिम वलीद बिन उकबा को जो है वो लाया गया मदीना में, बराबर, सजा देने के लिए। और दो गवाह थे, हदीस वही हदीस जो मिर्जा बयान करता है, लेकिन पूरी हदीस बयान नहीं करेगा वो। दो गवाह थे। एक ने गवाही दी कि इन्होंने कै करके उल्टी की, बराबर? नहीं, वो आप बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, और एक ने गवाही दी कि इन्होंने जो है कहा कि मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए नमाज को तवील कर सकता हूँ और लंबी कर सकता हूँ। कौन बोल रहा है? वही दो गवाह जिसका नाम वो जो मिर्जा हदीस बयान करता है ना, आपका उस्ताद है, वो हदीस में वो दो शख्स जो गवाह है उनका नाम जिक्र नहीं है वो हदीस में, बल्कि दूसरी रिवायत में वो दो लोग कौन थे वो पूरी तफसीली गुफ्तगू है। अच्छा। हाँ, तारीख अल तबरी वगैरह में जो है ना वो पूरी ये तफसीली गुफ्तगू है कि ये दो लोग कौन। हमारा अहले सुन्नत वल जमात के लिए बुखारी मुस्लिम सही है ना? कौन बोले भाई? अहले सुन्नत वल जमात के लिए साली बुखारी और मुस्लिम हुज्जत है। सही है ना? सही है। सही है अलग हो गई चीज है, लेकिन हुज्जत तो वो तमाम रिवायत है जो सही सनद से है होगी, लेकिन यहाँ अगर बुखारी तो मुस्लिम में इंजीनियर जो बात मिर्जा भी तो निकल जाए, तारीखी रिवायतें बयान करता है। डोंट वरी, बट मुझे आप ये बता बट क्या दीजिए। यानी आप अपने यानी आप करे चमत्कार और हम करे कलाकार। नहीं यार, ही इज माय ब्रदर। अरे भाई सलमान भाई, उसूल ऐसे दीन मत समझ में बनाइए। आने के बाद है ना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अहले हदीस में लगे हुए लोग ऐसे हैं जो यार निटी गिटी वाली बात, सुनो ना भाई, किताब तो और सुन्नत के मनहज वही की बोल बात रहा को हूँ, अहले हदीस का करते मनहज यही अच्छा है। लगता है। अहले हदीस क्या भाई, पूरे सुन्नी बरेलवी देवबंदी शिया को छोड़ के, आपके बड़े भाइयों को छोड़ के, क्या? हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं देवबंद भाई तो है हमारे। नहीं, हम नहीं मानते उनको भाई, ठीक है? नहीं ना, तो फिर वही तो, फिर आप भी इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फी शैइन इन्नमा अमरुहुम इलल्लाहि सुम्मा युन्नब्बिहुम बिमा कानू यफ़अलूना। हम तो एक दूसरे भाई है और हमको कलमे की ताजीम करनी चाहिए। उनका कलमा अलग है इसलिए हम उनको भाई नहीं मानते। हाँ, उनका कलमा अलग है इसलिए हम उनको भाई नहीं मानते। कौन सा कलमा अलग, किसका कलमा अलग है? शिया का भाई। आप कभी तहकीक किए हो या नहीं किए उनकी किताब? तो आपने अहले सुन्नत की किताबें नहीं पढ़ी है तो उनकी किताबें कहाँ से पढ़ेंगे? उनकी किताबें पढ़ी है, उसूल काफी वगैरह में साफ जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। कलमा अलग है जिसको हमने अलीउन वलीउल्लाह। तो अली तो अल्लाह का वली है, लेकिन तो ये मोहम्मद कलमा रसूलुल्लाह तो को वैसा निकाल बोले तो दिया। फिर अलीउन अबू बकर, अलीउन उमर, हम कलमे में कह सकते हैं एडिशनल करके?
नहीं नहीं अली अली उन माविया, यार वो सब अल्लाह के वली तो है ही अली ना। उन माविया, अली उन मुगीरा बिन शेबा, अली उन वलीद बिन उकबा, ये मैं बोल सकते हैं फिर एडिशनल करके हर कोई अपने अपने तरफ से। फिर मैं मेरे उस्ताद का भी नाम लूंगा, अली उन असरी, सरफराज असरी। ये क्या लॉजिक लाए भाई, ये इतना करके आप इनके बातिल और कुफरी अकीदों का दिफा करोगे, चाह कर भी नहीं कर सकते। चलिए सुनिए और मैं बताता हूँ। तो वलीद बिन उकबा पे बात चल रही थी, सुनिए। तो वही हदीस में है कि 2 लोगों ने गवाही दी, ठीक है, इतना है। अब वो 2 लोग कौन थे पता है आपको? बताइए। हाँ, वो 2 लोग जो है ना सबाई दरिंदे लोग थे, जिनके ना बाप साहबी थे, ना उनके खानदान में कोई साहबी था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। ये इस्लाम का, उनका नाम मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, नाम वगैरह पूरी तफसील के साथ इंशाल्लाह आपको वो पूरी रिवायत ही सेंड करूंगा अरबी मतन के साथ, इंशाल्लाह, ये मेरा वादा है आपसे। मैं अरबी मतन चाहूंगा, और मैं आपको वलीद के लिए 40 कोड़े का हुक्म हजरत उस्मान को अरे देते हुए, तो वही बता रहा हूँ भाई वही बता रहा हूँ मैं। 40 कोड़े की सजा किस पसे मंजर में दी गई, वही चीज मैं दलील से बता रहा हूँ। आप अरे को भाई एक बात बोलता हूँ, सुनिए। मुनकरे हदीस जो है, बरोबर, वो कुरान से ही दलील देते हैं कि कुरान हमारे लिए हुज्जत है। देते हैं या नहीं देते हैं? होता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि भाई कुरान की आयत को समझने के लिए दूसरी कुरान की आयत लेना पड़ेगा। ये बरोबर है ना? शान नुजूल या फिर दूसरी आयत की तफसीर वगैरह सब देखना पड़ेगा। एक ही आयत को लेके आप ये अकीदा नहीं रह सकते, ये अब अपना मौकिफ नहीं बना सकते। ये मुनकरे हदीस को कहते हैं ना। हाँ जी, उसी तरह ये बात मैं आपको भी कह रहा हूँ, एक रिवायत को लेकर आप पूरा मौकिफ नहीं बना सकते। अब जैसा आपने ये 40 कोड़ी, वही सुनो ना सलमान भाई प्लीज, अब बुखारी मुस्लिम से अगर सेम टॉपिक हमने पा लिया, फिर उसको कहाँ डालेंगे? तो भाई बुखारी मुस्लिम में से बहुत से हदीस है जिसकी शरह हमें दूसरी हदीस की दूसरी रिवायतों में मिलती है, पूरा पसे मंजर। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक रिवायत बयान कर रहा हूँ, मस्जिदों में लिखा होता है कि जहाँ भी आपने पा लिया, हदीस बयान कर रहा हूँ, एक हदीस बयान कर रहा हूँ। अब इससे अंदाजा लगाइए कि अदालत का फैसला क्या होता है। अब इससे अंदाजा लगाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 लोग आए, एक थे साहबी और एक था गैर साहबी, यानी मुसलमान नहीं था। एक मुस्लिम था, एक नॉन मुस्लिम था, ठीक है। दोनों जने आए और दोनों जने अपनी जगह के मसले को लेकर अल्लाह के रसूल के पास आए। तो जागता है घड़िया, 1 मिनट सलमान भाई जी, बढ़िया। तो जी सलमान भाई बोलिए। हाँ जरा 1 मिनट, पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ भाई जी सलमान जी रफीक भाई। तो अल्लाह के रसूल पास आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आने के बाद जो है ना भाई, वो दोनों जने वो एक जगह को, उनका इख्तिलाफ चल रहा था, ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है करके, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वो एक साहबी जो आए थे उनको बोला कि आप बताइए कि ये जगह आपकी कैसे हुई। तो उन्होंने जो सही है वो बोल दिया, ये है, ये ऐसा, ठीक है। अब वो दूसरा जो था, जो मुसलमान नहीं था, उसको अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तू बता कि ये जगह तेरी कैसे हुई। तो वो था चर्ब ज़बानी। चर्ब ज़बानी का मतलब पता है ना? हेलो जी सलमान, चर्ब ज़बानी का मतलब पता है ना? वापस बोलिए। चर्ब ज़बानी, चर्ब ज़बानी, चर्ब ज़बानी, चर्ब नहीं सॉरी, बताइए। चर्ब ज़बानी यानी जैसा ये गोदी मीडिया वगैरह रहती है ना, यानी बातों को ऐसे बयान करके, ये झूठ को मतलब ऐसे पेश करती है कि सच समझ जाते हैं लोग। उसको कहते हैं चर्ब ज़बानी। तो वो जो नॉन मुस्लिम था वो चर्ब ज़बानी का माहिर था, तो उसने चर्ब ज़बानी में बताया कि ये जमीन मेरी है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आदमी जो नॉन मुस्लिम था, जो ईमान नहीं लाया था, मुसलमान नहीं हुआ था, उसकी बात को मान लिया और वो फैसला उसके हक में दे दिया जी। अब इससे क्या पता चलता है भाई, ये जबकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो जब गया खुश हो, मतलब वो नॉन मुस्लिम जगह मेरे को मिली करके गया,
جانے کے بعد وہ صحابی جو تھے وہ بولے کہ اے اللہ کے رسول واقعی میں یہ جگہ جو ہے یہ میری ہے، میری تھی. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے پتہ ہے؟ بلاتے نہیں ہیں اس کو واپس نہیں. کہ فیصلہ غلط ہوا کر کے. اللہ کے رسول خالی اتنا ہی بولتے ہیں وہ جو زمین کا ٹکڑا لے کے گیا ہے دراصل وہ جہنم کا ٹکڑا لے کے گیا. اللہ کے رسول کیا بولے؟ جہنم گیا، لیکن بلاتے نہیں ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عدالت جو ہوتی ہے نا وہ گواہوں کو دیکھتی ہے، وہ پس منظر نہیں دیکھتی ہے، اور نہ ہی الزام جھوٹ لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے وہ بھی نہیں دیکھتی ہے، بس گواہوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتی ہے. اچھا قرآن میں آیت ہے برابر؟ قرآن میں آیت کیا ہے آدم علیہ السلام کے تعلق سے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ابلیس شیطان نے جو ہے آدم علیہ السلام کو اللہ کے نام سے دھوکہ دیا. قرآن میں آیت ہے اللہ کے نام سے دھوکہ دیا. یہ آیت غالباً سورہ بقرہ میں ہے، شاید سورہ بقرہ میں آیت ہے یہ کہ اللہ کے نام سے دھوکہ دیا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. یعنی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان جو ہے، جو شیطان ہوتا ہے، شیطانی صفت والا جو انسان ہوتا ہے، وہ اللہ کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. اور عدالت کا فیصلہ وہی ہوتا ہے، اور مسلمان کی عدالتوں میں فیصلے قاضی اسی بنا پہ کرتے ہیں، گواہ دیکھتے ہیں، اور جب وہ اللہ کا نام لے رہا ہے تو فیصلہ کر دیتے ہیں. سمجھے نا؟ اب یہ اصول آپ کے دماغ میں بیٹھا کیا بھائی کہ اسلامی حکومت میں قاضی وغیرہ فیصلے کیسے کرتے ہیں؟ پتہ چلا گواہوں کو دیکھ کر. یار اسلام کو دیکھی کہ آج بھی جو سسٹم چل رہی ہے وہ اسلامی کی تو دین ہے. تو سنو نا اسلامی بھائی، نے تو لائے کے سمجھایا نا. اتنا لمبا نہیں کرنا ہے رفیق بھائی. ریاست مدینہ میرے بھائی، ریاست مدینہ اس زمین پہ، اس پلینٹ ارتھ پہ جب سے بنی تب سے دنیا میں اجالا آیا. تو آج کی عدالتیں ہو چاہے اس زمانے کی، لیکن جو بھی نبی علیہ السلام کے رستے سے اسکیپ ہوا اور اس سے پھسلا، وہ ہو سکتا ہے دنیا اپنی بنا لے، لیکن ہم تو اٹھ کے جواب دینے والوں میں سے نا، نبی علیہ السلام کی صفات والوں میں سے. تو ہمیں اطیع اللہ و اطیع رسول کے اندر رہنا ہوگا. سلمان بھائی جی بولیے. ہمیں اطیع اللہ و اطیع رسول کے اندر رہنا ہوگا نا. یہ ہمارے لیے ایبسولیٹلی گائیڈ لائن ہے نا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنَّا تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. تو یہاں ایبسولیٹلی اطاعت تو اہل ایمان کے لیے یہ ہے کہ وہ جہاں بھی پائے اللہ اور اس کے رسول کا حکم وہاں سرے خم کر جائے، اور اس کے بعد تمہارے جو اولی الامر منکم ہے ان کو ہر جگہ معروف میں ان کا ساتھ جو دو، اور جہاں بھی ان کو منکر پاؤ تو ان سے الگ ہو جاؤ. یہی ہم اہل ایمان کا عقیدہ ہوگا نا. تو سنیے نا بھائی، یہ ہمیں ہمارا رب سکھا رہا ہے. تو پھر ہم جی بات ادھر تقلید وغیرہ کی نہیں چل رہی ہے، جو آپ اتباع کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ادھر بات جو چل رہی ہے نا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چل رہی ہے. تو ولید مانے آپ کے جو سے ہم مانے میں بات بول رہا ہوں میری یہ ایک 5 منٹ کے لیے انشاءاللہ یہ میں آپ کو سمجھا دوں گا، 5 منٹ میں بھی نہیں 2 منٹ میں انشاءاللہ، کہ یہ مسئلہ کیا تھا. تو وہ مسلم میں جو حدیث ہے وہ اتنا ہی ہے کہ 2 لوگوں نے گواہی دی، جس کی جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس گواہی کو مانا، اور ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 کوڑوں کی سزا دی. لیکن ایک وہ حدیث میں یہ بھی ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کروڑوں کی سزا کے لیے، یہ حدیث کا آخری ٹکڑا ہے نا، انجینئر علی مرزا بیان نہیں کرے گا. تو سر اس حدیث میں کیا اس یہودی کا جو مسجد کوفہ کے اندر جادو چلا رہا تھا اس کا ذکر نہیں ہے؟ مسجد کوفہ میں جادو چلا رہا تھا، وہ جادو والی بات کو آپ دماغ میں رکھنا، چلا رہا تھا یا نہیں وہ بات کو آپ دماغ میں رکھنا. میں انشاءاللہ بیان کروں گا، میں انشاءاللہ بیان کروں گا. وہ سنو ایک بات بتا رہا ہوں، سزا کے تعلق سے بتا رہا ہوں، جو سزا دی ہے نا. اچھا آپ بول رہے ہیں مسلم میں ہے 40 کروڑوں کی سزا دی،
اور صحیح بخاری کی حدیث مجھے واپس کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہوگا سلمان بھائی. میں آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں. میرے طرف سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, ڈونٹ وری, میں سن لیتا ہوں پلیز. ہم 5 منٹ میں, ایک منٹ ہم 5 منٹ کا میں آپ کو وقت دے رہا ہوں. مجھے بیوی بچوں کو لے کے دوسرے روم پہ جانا ہے اور 5 منٹ میں ہم چرچا کریں گے. اس کے بعد ہو سکتا ہے تو مجھے آدھا گھنٹے کا بریک دو, بعد میں واپس ہم ڈیبیٹ کریں گے. جی بولیے. مطلب ابھی آپ جا رہے ہو؟ ہاں مجھے جانا ہے, ذرا دوسرے گھر جانا ہے. اچھا, مطلب پھر میں 5-10 منٹ کے بعد کال کروں؟ 5-10 منٹ نہیں, منیمم آدھا گھنٹہ لگے گا. مجھے 4 کلومیٹر جانا ہے. اچھا 4 کلومیٹر, ٹھیک ہے چلے گا. ہاں ابھی 5 منٹ آپ کنٹینیو رہو, ڈونٹ وری. اچھا 5 منٹ کنٹینیو, ٹھیک ہے. تو بھائی جی, صحیح مسلم کی حدیث میں 40 کوڑوں کی سزا اور صحیح بخاری کی حدیث میں 80 کوڑے. ٹھیک ہے, 40 ہے نا. آپ فیصلہ کیجیے. آپ بتائیے میرے کو تحقیق کر کے کہ 40 ہے یا 80 ہے. میں دونوں کی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ کو بخاری مسلم کے اس کے حدیث نمبر معلوم نہیں ہے آپ کو؟ میرے کو اتنا بھی ذہن میں نہیں ہے, کیونکہ بہت سے میرے کو مفہوم یاد رہتے ہیں, نمبر یاد نہیں رہتے. حدیث کے الفاظ بھی یاد رہتے ہیں بہت سارے, لیکن وہ نمبر یاد نہیں رہتے. ہوتا ہے نا, دیکھو سلمان بھائی, آپ یہ بات مان سکتے ہو نا کہ مفہوم یاد رکھنا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے پاس ریفرنس نمبر رہے گا تو اگر میرے سے وہ اسکیپ ہو رہی ہے اور میرے پاس ریفرنس نمبر ہے تو میرے پاس 8 جلدیں حدیث کی جودھ پور سے, بخاری اور مسلم دونوں کی گھر میں ہے. ابو داؤد اور وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ تھوڑے دن میں وہ بھی ہائر کروا لوں گا. تو 7-8 جلد کو ہمیں مطلب اس میں دیکھنا پڑتا ہے. اگر حدیث نمبر معلوم ہو جاتا ہے تو کیا دیتا ہوں نا بھائی آپ کو واٹس ایپ پہ جو ہے پورے حدیث نمبر وغیرہ پورا دیتا ہوں, انشاءاللہ سن لینا, پڑھ لینا. ٹھیک ہے. تو صحیح مسلم میں 40 کوڑے اور صحیح بخاری میں 80 کوڑے. ٹھیک ہے, اب وہ میرے کو آپ بتا دینا کہ کتنے کوڑے, یعنی آپ ادھر ہی اندازہ لگائیے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیح ہند, ٹھیک ہے, یہ دونوں میں ہی سزا کی کوڑے کی تعداد میں بھی اختلاف ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بات ذہن میں بٹھائیے. اب رہا سوال, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوڑوں کی سزا دینے کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ان کو سزا دیجیے, جی, لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا, کہا کہ میں نہیں دوں گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ دیجیے سزا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع کیا کہ میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, کیوں منع کیا, کس لیے منع کیا, وہ بات یہ صحیح بخاری اور مسلم میں نہیں ہے بلکہ دوسری روایتوں میں موجود ہے جو اسی سند کے ساتھ ہے. کیا بخاری اور مسلم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہی بولتے ہیں میں نہیں دوں گا؟ ہاں اتنا ہی بولتے ہیں, اور بولتے ہیں کہ آپ ان کو کہیے. حضرت حسن یہ بول رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کہ میں نہیں دوں گا, میں نہیں دوں گا, آپ ان سے کہیے. ٹھیک ہے, اب یہی والد ماجد کو اس نے یہی بولا کہ ابا حضور میں یہ کام نہیں کر سکتا, اتنا ہی بولا ہے؟ ہاں اتنا ہی بولا ہے بھائی. اگر زیادہ بولا ہے تو آپ میرے کو بتا دیجیے حدیث کے الفاظ. ٹھیک ہے, میں بخاری مسلم سے دوں گا انشاءاللہ دے دینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ ادھر پہ دونوں نے بھی سزا دینے سے منع کیا. کیوں منع کیا, کس نے منع کیا, اور وہ جو 2 لوگ جو گواہی دیے تھے وہ کون تھے, وہ روایت جو ہے وہ پوری کیا بولیں گے, نزول, جیسا قرآن کی آیت کا شان نزول ہوتا ہے جس کو ہم پس منظر بھی بولتے ہیں, یہ پورا پس منظر جو ہے دوسری روایتوں میں ملتا ہے. وہ جو شخص تھے وہ 2 شخص سبائی درندے گروہ کے تھے, جن کے گھر میں دور دور تک ان کے خاندان میں کوئی بھی نہ صحابی تھا نہ اہل ایمان والا تھا. وہ لوگ کوفہ کے تھے, اور وہ لوگوں نے جب ولید بن عقبہ, وہ پوری روایت میں یہ جو سزا دینے کی بات ہے نا اس کی پوری تفصیل شان نزول جو ہے دوسری ایک ہی روایت میں پورا موجود ہے, ایک ہی روایت میں پورا, اور صحیح سند کے ساتھ. کون سی روایت ہے, کون سی بک؟ میں انشاءاللہ وہ دیتا ہوں آپ کو. تاریخ تبری وغیرہ کی کتاب ہے, میں انشاءاللہ اس میں آپ کو پوری سند کے ساتھ میں وہ دیتا ہوں. تاریخ تبری کے اندر اسے اور بخاری مسلم میں جو چیزیں آ جاتی ہے وہ کیا یہ ہمارے نزدیک بخاری مسلم جو ہے وہ صحیح ہے نہیں ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھوں گا. ہے نا, صحیح ہے, صحیح ہے نا. اور اس کے جو راوی ہے یعنی آپ بول رہے ہو کہ مسلم نے ایسے راویوں کو اپنی اس بکس میں جمع کیا ہے
जिनका अगले आगे पीछे का कोई पता नहीं है, उनके आगे पीछे इस्लाम में कोई है या नहीं? मतलब आप मैं ये रावी बोलना चाह थोड़ी रहे हो बोल कि रहा हूँ मुस्लिम? भाई, मैं रावी के बारे में कुछ बहस किया हूँ? जी मैं रावियों के बारे में कुछ कहा हूँ? नहीं नहीं, वो जो लोग बात ला रहे हैं उनको हाँ। स्कीप किया जा रहा है और उनको उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, और आप बोल रहे हो कि दूसरी जगह उन्हीं 2% का नाम डिक्लेयर। उन्होंने जो है बुखारी और सही मुस्लिम में जो है ऐसे बहुत से हदीसें हैं जो मुख्तसर में है, जिसका पूरा हकीकी वाकया जो है वो दूसरी किताबों में मिलता है। ऐसी बहुत सी रिवायतें हैं। वो तो उनके उस्तादों में से होगा ना फिर। कौन? बुखारी मुस्लिम के उस्तादों की बुकों में हो गए ना, जैसे आपने बोला तबरी। हाँ, तबरी। और इमाम तबरी को तो इंजीनियर अली मिर्जा बहुत बड़े इमाम बताता है। इंजीनियर सॉरी, अब मेरा 5 मिनट हुआ ना सलमान भाई। हाँ, चलेगा भाई। आप मेरे को आधे घंटे के बाद कॉल कीजिए, जैसे ही आप फ्री हो जाएंगे। इंशाल्लाह आधे घंटे के बाद लेकिन करना भाई, क्योंकि मेरे को कल से और टाइम नहीं मिलेगा बात करने के लिए। ठीक है। आप मेरे को आधे घंटे बाद कॉल कीजिए, इंशाल्लाह इस पर तफसीली गुफ्तगू